morning, everyone. Welcome to Capital Christian Center. It is so nice for you to join our online worship session. We have a power-packed worship and a blessed message by our pastor. Over to our worship team. Praise the Lord, church. We want to thank you for this wonderful Sunday that we are able to partake. परमेश्वर की हुजूरी में आने के लिए एक और मौका में मिले, उसके लिए परमेश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे. और हम क्यों ना अपने अपने दिलों को तैयार करें. Why don't we prepare our hearts and tell Jesus, God, you're so good. God, and we want to thank you, Lord, for everything. Father, we give you all the glory. We give you all the praise. परमेश्वर को क्यों ना बोले, परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते खुदा. We give you all the glory, God. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है. तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी. रास्ता भी है, तू है जहाँ
give thanks. With a grateful heart, Yes, Jesus. give Give you thanks thanks. to the Holy One, Oh, we do, Lord. because He's given Jesus Christ His Son. We give you thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus His love. And now, let the weak let the poor because the Lord has and क्यों ना अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे. Why don't we lift up our voices and give thanks to the living God? We give you thanks. Oh, Jesus. कुछ नहीं चाहिए मुझे खुदा तेरे बिना. कुछ नहीं चाहिए खुदा सिर्फ तू बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए. तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझे. तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझे. कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए. कुछ नहीं चाहिए खुदा बस तू ही तू चाहिए. तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझे. तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा. ये रिश्ता काफी है मुझे. Say you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. You're all I want. You're all I need, Jesus. You're all I, yeah.
desperate for you. Yeah, I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm so lost without you. Waiting here, waiting here for you. Yeah, waiting here for you. With our hands lifted high in praise, it is you we adore, singing hallelujah. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. Jesus, it is you we adore, singing hallelujah. We're singing hallelujah. We're singing hallelujah. Lift it up and say hallelujah. One more time, say hallelujah. Oh, waiting here for you with our hands lifted high in praise. It is you we adore, singing hallelujah. We come before you, God. We come to you, Lord. उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। You were the word in the beginning, one with God the Lord Most High. The hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was greater, love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to it. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Jesus, we say, you are wonderful, God. You are wonderful, God. Death could not hold the veil to before you. Silence the voice of sin and pain. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal.
power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, there is power, power, wonder working power in the blood of Jesus. There is power, wonder working power in the precious. Worthy is the Lamb seated on the throne, crowned you now with many crowns. You reign victorious. You are higher, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is so worthy of it all. You are so worthy, God. पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, ओ हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. तेरे संग में चलो खुदा, सब मिलके गाएंगे. अब मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. तेरा नाम ऊंचा है, ऊंचा है. Oh, is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave.
Let's declare it, church, with every voice. Say, He is. He is. He is. He is. He is worthy. He is worthy of a blessing and honor and glory. He is worthy of praise. Let's say every knee shall bow, every tongue confess that only my Jesus Christ is Lord. Can we say, He is my Lord? Say, church, He is my Lord. He's my Lord. Yeah. He has risen from the dead, and He is my Lord. That's why every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is my Lord. Just the voices, every knee shall bow. Let's sing it out. Every knee shall bow, every tongue confess that my Jesus Christ is Lord. Father, you are our only hope, Jesus Christ. Lord, we put our trust in you in troubled times. When the oceans rise and thunders roar, I will be still in your presence. Maker of heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हम तेरे हुजूरी में शांत होते हैं, हम शांति प्राप्त करते हैं परमेश्वर. Lord, we want to say that every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is my Lord. He is your Lord, church. He is the Lord of your family. He's the Lord of your finances. He's the Lord of your job. Everything that you may think is probably not going to happen, He is the Lord of all. सारा आदर महिमा और जलाल हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. Isn't it awesome that technology is bringing us all closer together? We hope that you're using this technology to worship and fellowship with each other on Facebook, YouTube, and all the various platforms. Thank you for joining our Pastor's Talk last week. And in case if you're one of those who were not able to be a part of it, our Pastor's Talk happens every week on Monday, Wednesday, and Friday at 7 p.m. Last week we had a blessed time and we were talking about fasting and praying. We'd like to encourage you to be a part of it if you've not been the last week. पिछले हफ्ते का हमारा पास्टर्स टॉक बहुत अच्छा गया. उसका टॉपिक था प्रेयर और फास्टिंग की क्या वैल्यू है, यानी कि प्रार्थना उपवास की क्या वैल्यू है एक मसीह जीवन. अगर आप इस हफ्ते के पास्टर्स टॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फेसबुक लाइव में ट्यून कर सकते हैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. आज इस हफ्ते भी एक खास टॉपिक होगा जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा. हमें नौकरी मिलती है लेकिन हमारे इच्छा के अनुसार उस कार्य में कार्य नहीं होता और हम हार मानकर हम वापस आ जाते हैं. शायद हमारे परिवार में हमारे बच्चे हमारी बात को नहीं सुन रहे, हमें दुख लगता है, हम सोचते हैं हम मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हम और बिना बोझ के प्रार्थना करना ठीक उसी प्रकार है कि एक संतान को उत्पन्न करना बिना गर्भ में रहे.
समझे आप? जो भी व्यक्ति यहाँ पे लिखा है, जो भी व्यक्ति खुदा का पैदा हुआ है वो एक जयवंत से भी बढ़कर, वो एक ओवरकमर है। We know that all of us are reading our Bibles more than usual. इतना खाली समय है इसलिए हम ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और साथ में और भी ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी बात का फायदा हम उठाना चाहते हैं। हम अगले हफ्ते आपके लिए एक बाइबल क्विज लाएंगे जिससे हम आपको कुछ प्रश्न भेजेंगे और जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे हम उनका एक विनर अनाउंस करेंगे और उसी के द्वारा जिस दिन हमारा चर्च पहले खुलेगा उस विनर को प्राइज दिया जाएगा। सो आप तैयार रहिए। लविंग वन अनदर ग्रुप पे नजर रखिए और उसका इंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। We as a church believe in being a blessing to the community that we live in. And as a part of it, we have started an initiative called the Love Look. Joanne, would you like to tell our people what we do with this initiative? एब्सोल्युटली। लव लोग के द्वारा हम 300 लोगों को खाना खिलाते हैं रोज और 300 लोगों को राशन भी दे चुके हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा या पैसों के द्वारा, प्लीज हमारे पास्टर्स को कांटेक्ट कीजिए। Hope you had a wonderful time in the presence of God, and may this week be a blessing to you. सबको जय मसीह की। Praise the Lord, church. I know times are hard and challenging. Praise the Lord, church. I know times are hard and challenging, but God is in control of everything. If you would like to pay your tithes and offerings, we have two ways to do that. One is through Google Pay, and the number is on the screen, 9899470260. Or if you would like to transfer to the bank directly, you can see the number which is given on the screens. Whatever you do through Google Pay, we will transfer it from our Google Pay account to the New India Church of God North account and send you a receipt on WhatsApp. We are so thankful for your support. Take care, be safe, stay home. God bless you. Greetings to all of you in Capital Christian Center. और कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर में जितने भी लोग हैं उन सबको अभिवादन। It is so good to join together and worshiping our living God. और बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब एक जगह पे जमे होकर के परमेश्वर की उपस्थिति और आराधना कर सकते हैं। Almost 1 month has passed. और तकरीबन 1 महीना पूरा बीत चुका है। And we have been worshiping the Lord in our homes, and we have been coming into houses online, bringing a live worship for you. और हम अपने घरों में बैठ कर के आराधना कर रहे हैं और उसी के साथ हम इस फेसबुक के द्वारा हम अपनी आराधना को लेकर के आ रहे हैं। And of course I've been encouraging all of you to give to God. Giving we never stopped just because there was a lockdown. और लॉकडाउन के होने के वजह से मैं आपको उत्साहित करते आ रहा हूं कि आपको अपना जो भेंट है उसको देने में आपको रोकना नहीं है और लगातार आप उसको देते रहिए। And many of you have been giving, and I thank God for every one of you, even the ones maybe you're holding on to your offering, you don't know how to send it to us. और बहुत से लोग देते आ रहे हैं और बहुत से लोग नहीं दे पा रहे हैं और अपने आप को रोक रखे हैं कि हमें कैसा देना है। And you can send it online into our account. You can send it through Google Pay. Google Pay, you can do that. But whichever way you're giving, that God will bless you because we are giving unto God. और आप अपनी भेंटों को दे सकते हैं गूगल पे के द्वारा, जो नंबर आपको दिखाया जाएगा, और जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है आप दे सकते हैं। Amen. आमीन। I wanted to pray for the offering. मैं भेंट के लिए प्रार्थना करना I चाहूँगा। want to pray for every one of you. मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहूँगा। Amen. Amen. Because our prayer is God will protect your jobs. और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके कार्यों की सुरक्षा करे। God will protect your business. परमेश्वर आपके उद्योगों की सुरक्षा करे। God will protect the little finance that we get all the time. और हर तरह से जो हमें आर्थिक जरूरत हमारी मिलती रहती है उसके लिए परमेश्वर हमको देते रहे। Amen. आमीन।
Heavenly Father, हे स्वर्ग के पिता we परमेश्वर, come to the presence of God today. और हम आपकी उपस्थिति में आते हैं आज। Father, I lift up everyone, every brother and sister in Capital Christian Center. परमेश्वर, मैं आज कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर के हर एक भाई बहनों को मैं प्रार्थना में उठाता हूँ। Lord, they have been obedient to your word. परमेश्वर, वो आपके जो वचन है उसके प्रति आज्ञाकारी रहे हैं, In the middle of the challenges and crisis, they have been giving to God. और इतनी आर्थिक मंदी के बावजूद भी और परेशानी के बावजूद भी वो देते आ रहे I हैं। pray your blessing will be upon everyone. और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो आशीष है सब पर बनी रहेगी। Because we know that even in the middle of crisis, God is always with us. हम जानते हैं कि ये सब आर्थिक मंदी और परेशानी के बावजूद भी परमेश्वर हमारे साथ है। Lord, I pray you will meet the needs of everyone, Lord. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी जरूरतों को पूरी करेंगे There will be food in the house of everyone. और सबके घर में खाने की पूर्ति होगी। Lord, I pray you will protect every job that belongs to our people. परमेश्वर, हमारे तमाम लोगों के जो भी कार्य हैं जिसमें वो कार्य करते हैं उन सब की तू सुरक्षा करेगा। I pray that your hand will be upon everyone, Lord. और मैं आशा करता हूं कि आपका हाथ हम सब पे बना रहेगा। Lord, when the lockdown opens, nobody will be struggling in their financial situation. परमेश्वर, जब आर्थिक मंदी, जब ये लॉकडाउन खत्म होता है तो कोई भी अपने जीवन में आर्थिक मंदी को महसूस ना I करने पाए। bless everyone today. और मैं सबको आशीषित करता हूँ In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Always believe that God is on your side. हमेशा ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है। God will take care of you. परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। Amen. आमीन। Oh, not only in good times, but also in bad times. और इतना ही नहीं कि अच्छे समय में नहीं बल्कि खराब समय में भी God is your provider. परमेश्वर हमारा जो प्रदान करने वाला And है। God will always be your Jehovah Jireh. और परमेश्वर आपका हमेशा यहोवा यीरे के रूप में उभरेगा। Amen. Do you believe that? और आमीन। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? And we don't need to worry about what will happen for us tomorrow. हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आने वाले कल में क्या होगा। As long as God is there, जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, He knows tomorrow. उसे कल के बारे में पता है। And He knows how to take care of you and उसको me. ये भी पता है कि वो कैसे आपकी और हमारी चिंता करेगा। And I really thank God for all His goodness towards every one of us. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ उसकी अच्छाइयों के लिए जो आपके प्रति और मेरे प्रति है। Amen. आमीन। I'm so pleased to come to your home, bring the eternal word of God. और मैं आपके घरों में इस वचन के द्वारा आता हूँ जिसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। But the only problem is that I miss because I can't see you. You can see me, but I can't see any one of you. But I hope that you are having a good time in your homes. बस एक ही समस्या है कि आप मुझको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ इस लॉकडाउन के वजह से, लेकिन हम बहुत खुश हैं। Amen. आमीन। I want to share with you a word that God has put in my heart for you to live in this week. और मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहूंगा इस सप्ताह के लिए ताकि आप उसको अपने दिल में रखिए। Amen. आमीन। I want you to look with me that the book of the Gospel of Luke. और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार And we're going to read from chapter 17. और 17वें अध्याय से, And we'll read verses 26 and 28. और हम उसकी 26वीं आयत से 28वीं आयत तक पढ़ेंगे। And it says like this. और इधर इस प्रकार लिखा गया है, And as it was in the days of Noah, so it will be also in the days of the Son of Man. जैसे नोआ के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। And verse 28. और 28वीं आयत, Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they bought, they sold, and they planted and they built. और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। And verse 30 says, even so will it be in the day when the Son of Man is revealed. और 30वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। Amen. आमीन। Jesus has just finished healing 10 lepers. और परमेश्वर 10 कोढ़ियों को बिल्कुल चंगा कर देता है। 10 इसके बाद lepers came to him. और जो 10 कोढ़ी हैं वो उसके पास आते हैं They wanted to be cleansed. और वो चाहते हैं कि वो चंगे हो And जाएं। Jesus said to them, go and show yourself to the priest. और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जाओ और अपने राज्य जो बड़े बड़े पुनरियों या बड़े बड़े महायाजक हैं उनको जाके बताओ। Go and show yourself to the priest in the temple. और जिस तरीके से आपको चंगाई मिली अपनी चंगाई को उस परमेश्वर के
आराधनालय में जाकर के लोगों को बताओ। Amen. आमीन। वो जो priest का मतलब क्या है? पुरोहित के पास है, याजक। याजक के पास ले जाकर दिखाना, because that was the custom. या तो वो इस तरह की ये बातें थी कि जब आपको चंगाई मिलती है, आपको याजक के पास जाकर के बताना पड़ता है। And the Bible says, as they were going, they were healed. और वचन कहता है जैसे वो आगे जा रहे थे वो चंगे हो They गए suddenly realized they were healed. The leprosy is gone. और उन्होंने अचानक से अपने हाथ में ये महसूस किया देखकर कि उनकी जो कोढ़ीपन है वो चंगा हो चुका They है। came. One man came running back to Jesus. उनमें से एक जो कोढ़ी था वो वापस दौड़ करके प्रभु यीशु मसीह के पास आता And he है came and fell at his feet and said, Lord, thank you because I'm healed. और वो कहता है उसके चरणों में गिर करके प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं चंगा हो गया हूं। And Jesus said, और यीशु मसीह कहता है there were 10 people. और 10 आदमी थे आपके I साथ sent 10 people to show yourself to the priest. और मैंने तो 10 लोगों को भेजा था कि वो याजक को दिखाए, What happened to the 9? लेकिन वो 9 लोगों के साथ क्या हुआ? Because when Jesus sent 10 people were healed. और जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 कोढ़ियों को भेजा था, इसका मतलब है कि 10 कोढ़ी चंगे हुए थे। And the only one person came to say thank you to the Lord. और धन्यवाद कहने के लिए वापस उन्हें बस एक ही आदमी आता है। And he said to the leper, और वो लेपर वो जो कोढ़ी है वो कहता है arise, go your way, your faith has made you well. और वो बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि उठो और जाओ और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। And then the conversation goes between Jesus and the Pharisees. और तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और जो फरीसी लोग हैं उसके बीच में एक वार्तालाप शुरू होता है। And the Pharisees were asking him, और जो फरीसी थे वो यीशु मसीह से इस प्रकार पूछते हैं when the kingdom of God will come. और परमेश्वर का राज्य कब आएगा? Amen. आमीन। They were asking about the kingdom of God. They did not even know what they were asking. और वो जो परमेश्वर के राज्य के बारे में पूछ तो रहे थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कैसा है। Amen. आमीन। What do you mean the kingdom of God? और जो परमेश्वर का राज्य है वो किस प्रकार का है? Jesus is saying, people will be saying the kingdom of God is here or there, go and look for it. और लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य ऐसा है, इधर जाओ उधर जाओ और आपको मिलेगा। Then he made an amazing statement. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छा कथन बोलते हैं। For indeed the kingdom of God is within you. और सचमुच में जो परमेश्वर का राज्य है वो आपके अंदर है। It is inside of you. और वो आपके अंदर है। What is the kingdom that Jesus is talking और about? ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत कर रहा How है? could the kingdom of God can come and be inside of us? और कैसे परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन के अंदर आकर के वास कर सकता है? Amen. आमीन। When you read in the first epistle of Peter, और जो एपिसोल की जो पहला पत्रस का जो एपिसोल है उसमें आप जब पढ़ते हैं and there Peter says, और वहां पे पत्रस कहता है he who has brought you out of the kingdom of darkness into the kingdom of marvelous light. और उस परमेश्वर ने जो आपको अंधकार के साम्राज्य से आपको ज्योति के साम्राज्य में लेके आया है वो अद्भुत है। So we were all in the kingdom of darkness. हम सब लोग उस अंधकार के राज्य में थे। Peter says, और पत्रस कहता है he who brought you out of the kingdom of darkness into the kingdom of the marvelous light. और जो परमेश्वर आपको उस राज्य के अंधकार से इस ज्योति में लेकर के आया है वो बहुत ही अद्भुत है। Because of sin and wretchedness, our heart was the kingdom of darkness. और हमारे हृदय में गंदगी होना या बहुत ही हमारा दिल खराब होने के वजह से हमारा जो जीवन है वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है। And kingdom of darkness. और ये जो अंधकार का साम्राज्य है। And then when Jesus came into our life, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, he removed the kingdom of darkness. और परमेश्वर ने अंधकार के साम्राज्य को अलग करा। And he brought in the kingdom of light. और तब वो ज्योति के इस साम्राज्य को हमारे जीवन में लेके आया। That is what Jesus said, the kingdom of God. और ये है प्रभु यीशु मसीह उस ज्योति के साम्राज्य के बारे में बातचीत कर रहा है। And it is the kingdom of God within us. और ये जो परमेश्वर का राज्य जो हमारे हृदय में है या अंदर है। Maybe the Pharisees were still wondering what did he say, but they didn't say anything more.
और जो फरीसी है इसको सुनने के बाद वो सोचने लगे ये क्या बोला है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। And after that, he started to talk about the kingdom to his disciples. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ये जो साम्राज्य है, साम्राज्य की बात को अपने चेलों के साथ बातचीत करने लगे। Pharisees were asking, when will the kingdom would come? और जो फरीसी लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि ये जो परमेश्वर का राज्य है वो कब आएगा। Amen. आमीन। But here, Jesus is telling his disciples, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहते हैं, and he said, the day is coming. और दिन बहुत नजदीक है। Amen. आमीन। The day of the Lord, the Son of Man, is going to come. और जो मनुष्य के पुत्र का दिन है वो आने वाला है। And that is different to what he was talking to the Pharisees. और ये उससे अलग था जो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से बातचीत कर रहा My था। dear friends, we are living in the last time, last moments of the last days. और मेरे प्रिय मित्रों, मैं बहुत अंत के समय में हम सब लोग जी रहे हैं। Jesus Christ is going to come very soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। And these are all the signs that shows about the coming of the Lord. और ये सारे चिन्ह हैं प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Coronavirus. कोरोना वायरस। Fear in the hearts of everyone. और हम सबके हृदय में एक डर है। It has really shaken the whole world. और इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। It is not just one country. और ये सिर्फ एक ही देश की बात नहीं है। It is all over the world. ये पूरे समस्त जो पूरा जो साम्राज्य है उसके बारे में है। We do not know what could happen for us tomorrow. हमें नहीं पता कि आने वाले दिन में हमारे जीवन में क्या घट सकता है। What is the problem with this virus? और इस वायरस से क्या परेशानी है। It came so suddenly. और ये अचानक से हम पर आया। And it is staying with us. और ये हमारे साथ रुक गया है। But we do not know when it is going to leave us. लेकिन हमें नहीं पता कि ये हमें कब छोड़ करके जाने वाला है। You know, in the Old Testament we talk about the 10 plagues in the land of Egypt. और आपको पता होगा पुराने नियम में हम उन 10 महामारी के बारे में देख सकते हैं जो इजिप्ट में हुआ था। One by one the plagues came. और एक के बाद सारी महामारियां आ रही थी। Water was turned into blood. और जो पानी था वो लहू में बदल गया। And the flies came. और फिर मक्खियां आई। And then the disease came on the bees. और फिर ये जो मधुमक्खियां थी और या जो टिड्डियां थी ऐसी बीमारियां आई। There were so many problems which were very enormous problem in the land of Egypt. और जो इजिप्ट के जो देश था उसमें ये बहुत आयत की बीमारियां उभर के आई थी। The Lord brought it upon them. और परमेश्वर उनके ऊपर लेकर के आया था। And when Pharaoh repents, और जब फारो ने अपने दिल में ये अंगीकार किया, but Moses will stretch out his rod. और फिर जो मूसा है अपनी छड़ी को आगे निकालेगा। And immediately the plague will leave. और अचानक से उसके बाद ये जो महामारी है वो वहां से चली जाएगी। Everything will become normal. और वापस सब का सब वो वापस सामान्य हो जाता है। That is the only thing that could happen for this coronavirus. और उसी के जैसा उधर हुआ था वैसा ही इस कोरोना वायरस के लिए भी होने की जरूरत है। We don't have a vaccine for this. हमें इसके बारे में नहीं पता है कि कौन सी वैक्सीन है। We don't have treatment for this. हमें इसके इलाज के बारे में कुछ नहीं पता है। Doctors are all worried what could happen tomorrow. और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें वो बहुत चिंतित हैं कि कल क्या घट सकता है। We got two problems in the land of India. और हमारे भारत देश में अब दो बातें उभर के आ रही हैं। One problem is, और पहली जो बात है, the doctors are worried because 80% of the people do not have any symptom of this virus. और वो कह रहे हैं जो डॉक्टर हैं कि जो 80% लोग हैं उनके बारे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनके अंदर क्या सिम्टम्स हैं। That means they are normal but they have got coronavirus. लेकिन वो बिल्कुल सामान्य तो दिखते हैं लेकिन उनके अंदर में ये कोरोना वायरस वो आ चुका है। There is no headache. और उनको सर दर्द नहीं हो रहा है। There is no fever. उनको बुखार नहीं है। There is no cough. उनको खांसी नहीं हो There रही is no है। chest pain. उनके सीने में दर्द नहीं है। So these are all the symptoms that makes you to think, take him, test him. He might have और coronavirus. जब ऐसी सारी जो बातें आपको नजर आती है तो आप पता कर सकते हैं कि इसको कोरोना वायरस हो चुका है या उससे पीड़ित है। But 80% of the people don't have any symptoms. लेकिन जो 80% लोग हैं उनमें ये सारी बातें दिखाई नहीं दे रही है। That is one of the problems. और ये एक बात है। And the other problem is, और जो दूसरी समस्या है, out of the big population of our country, और हमारे दुनिया में जो हमारे जो देश में जो बड़ी जनसंख्या है, 130 crores of people, और जो 130
130 करोड़ की जो जनसंख्या है, we are testing only a very small number of people. हम बहुत ही सामान्य मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। These are the things that the government will not reveal to us. और जो हमारी सरकार है, ये सारी बातें हमारे सामने उजागर नहीं करेगी। We are the country that is testing the smallest number of people compared to all the other countries. सारे देशों के बजाय हमारा जो देश है वो बहुत ही सामान्य रूप में और कम संख्या में लोगों की जांच पड़ताल कर रहा है इस बीमारी को लेकर के। Do you know how many people are being tested? आपको पता है कितने लोगों को टेस्ट किया है? Out of 10 lakhs of people, 1 million people, और 10 लाख लोगों में से only 250 people are tested. सिर्फ 250 लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। Can you imagine that? क्या उसके बारे में आप सोच सकते हैं? 10 lakhs of people out there, और बाहर दुनिया में 10 लाख लोग हैं, only 250 people are tested. और उनमें से सिर्फ 250 लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। Even within that 250 people, और उन 250 लोगों में भी our positive cases, the people who got this virus, has gone beyond 20,000 people. और उसमें से कम जो लोग हैं वो 20,000 के ऊपर जा चुके हैं जो संक्रमित हो चुके हैं। They have tested only about 200,000, 2 lakhs of people so far. और अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 लाख लोगों की जांच पड़ताल की है कोरोना वायरस को लेकर के। That is a problem. और ये है समस्या। So what are we going to do? हम क्या करने वाले हैं? We don't know what will happen on the 3rd of May. हमें नहीं पता कि 3 मई के बाद क्या होने वाली है समस्या या क्या समय होने वाला है। We are sitting and thinking, okay, only 10 more days and everything will be okay. हम अपने घरों पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ बस 10 दिन बाकी है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। We don't know, my dear friends. हमें नहीं पता है मेरे प्रिय मित्रों। We don't know if the lockdown is over. हमें नहीं पता है कि लॉकडाउन उसके बाद खत्म हो जाएगा। We don't know when you and I walk out of the house what is waiting for us there. हमें नहीं पता है कि कब हम घर से बाहर निकलेंगे और क्या चीज हमारी प्रतीक्षा कर रही है। We don't know whether the coronavirus is dying down or it is increasing. और हमें नहीं पता कि कोरोना वायरस की जो मात्रा है वो कम हो गई है या बढ़ रही है। Why am I saying all these मैं things? क्यों ये बातें आपके साथ बांट रहा हूँ? Of course, giving you some information. ये तो अच्छी बात है कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इसके बारे But में। more than that, लेकिन उससे कहीं बढ़कर I'm telling you that we are facing a sickness, a virus, a plague that man cannot control. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है या ये जो संक्रमण है या ये एक ऐसी चीज है जिससे हम जूझ रहे हैं और हमें इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Man has thrown up his hand up in the air. और हम सब मनुष्यों ने अपने हाथ उठा लिए हैं ऊपर। The doctors are shaking their head. और जो डॉक्टर है वो उनका सर चकरा रहा है इस बीमारी को The लेकर के। government is sitting there and worried every moment. और जो सरकार है वो हर समय वो डर रही है कि अगले क्षण क्या होगा। It is not only just India. और ये सिर्फ भारत की हालत नहीं है। Every nation in the world. और पूरे समस्त कल्याण में ये हर जो देश है वो इस बात से जूझ रहा है। Fear is taking a grip of every person. और जो डर ने है सबको अपनी मुट्ठी में ले लिया है। Amen. आमीन। So what is the answer? और इसका उत्तर क्या है? Jesus Christ is the answer. और यीशु मसीह है सिर्फ इसका उत्तर। God is telling you and me today, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कह रहा है, I am the only one who can deliver you. और मैं हूँ एकमात्र रास्ता जो आपको छुड़ा सकता है I इस am बीमारी से। I am the only one who can protect you. और मैं ही एकमात्र एक ऐसी चीज हूँ जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। Amen. आमीन। That is the reason why there is so much of prayer going on. और इसलिए यही कारण है कि बहुत सी प्रार्थनाएं चल रही हैं। People are repenting everywhere. और सब लोग अपने पापों से अंगीकार कर रहे हैं। Most of them is because of fear. और हो सकता है कि सिर्फ डर के मारे ये सब कर रहा है। Because death is standing at the door. क्योंकि जो मृत्यु है वो हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है। It could be me, it could be you, or it could be anybody else. और हो सकता है आपकी प्रतीक्षा कर रही हो मेरी या किसी की भी। So people have started to call upon the name of the Lord. और लोगों ने परमेश्वर का नाम पुकारना शुरू कर दिया है। Saying, God, please protect me. और वो कह रहे हैं परमेश्वर कृपया करके हमारी सुरक्षा कीजिए। My family. मेरे परिवार की। My children. मेरे बच्चों की। Lord, my church people. मेरे जो कलीसिया के लोग हैं। Lord God, may the hand of God will be upon everyone, I pray. और होने दीजिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। And all these things are showing something to you and me. और ये सारी बातें जो हो रही है वो हमें एक बात जरूर के दिखा रही है। The day of the Lord is coming. परमेश्वर का दिन बहुत निकट
है. Amen. Whether you like it or not, whether you believe it or not, the day of the Lord is coming. चाहे आपको पसंद आए या ना आए, चाहे आपको विश्वास करना है या ना करना है, लेकिन परमेश्वर का दिन बहुत निकट है. That is why this world is shaking. और इसलिए सारी जो दुनिया है वो हिल चुकी है. This world will fall apart on the day that the Lord is coming. और ये जो दुनिया है वो थरथरा जाएगी, कांप जाएगी जब परमेश्वर वापस आएगा. And Jesus Christ is giving us a warning. और परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी दे रहा है. And he is giving us a sign of what will happen when Jesus comes back. वो हमें चिन्ह बता रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा. And we read this verse once again. और दोबारा से हम ये आयत को पढ़ सकते हैं. Verse 26. और 26वीं आयत. And as it was in the days of Noah. जैसे नूह के दिनों में हुआ था. And so shall it be in the days of the Son of Man. वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा. Jesus is comparing the time of his coming back to the days of Noah. और प्रभु यीशु मसीह अपने आने वाले समय को नोआ के दिन में जो हुआ था उससे उसके बीच में एक तुलना कर रहा है. And then he is telling us what was happening in the days of Noah. तो वो बता रहा है कि नोआ के दिनों में क्या हुआ था. And it says in verse 27. और 27वीं आयत में लिखा है. They ate, they drank. और वो खाते थे, पीते थे. And they married wives and they given marriage. और वो लेन देन करते थे, शादियां करते थे. It sounds like a normal life. और ऐसा दिखाई देता है कि ये तो एक सामान्य जीवन है. It sounds like every man lives like this in the world. और ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक जो आदमी है जो दिनचर्या की बातें करता रहता है. There's no difference between a believer or a non-believer. और एक जो अन्य जो अविश्वासी और विश्वासी उसके जीवन में कोई भी अंतर There's नहीं no है. difference between a man who knows God or doesn't know God. और कोई भी अंतर नहीं है जो परमेश्वर पे विश्वास करता है और जो विश्वास नहीं करता है. What about you? आपके बारे में क्या Do है? you eat? क्या आप खाते हैं? Do you drink? आप क्या पीते हैं? Do you get your daughters married? आप अपनी बेटी की शादी होने के लिए देते हैं? And do you marry? और आप शादी करते हैं? And then you can extend what Jesus has said. और आप आगे बढ़ चढ़ करके आप बात कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है. He is talking about a normal life. और इधर बात कर रहे हैं एक सामान्य जीवन के बारे में. You are eating and drinking. आप खा रहे हो, पी रहे हो. Marriage is taking place. और शादियां हो रही हैं. You're working. और आप कार्य कर रहे हो. You can take care of a job. और नए आप जॉब को ले रहे हो. Your family. आपका परिवार. Your children. आपके बच्चे. The life goes on. और जो दिन है ऐसे बढ़ता रह रहा है. Then the question is this. लेकिन जो प्रश्न है वो What ये is है. wrong with the normal life? और एक हमारे सामान्य जीवन में क्या गलत हो चुका Why है? is it a warning for every one of us? क्यों हम सबके लिए चेतावनी की बात है? Are you listening to me carefully? क्या आप मुझे बहुत ध्यान से सुन पा रहे हैं? It is not what you're eating. और ये नहीं है कि आप जो खा रहे हैं. It's not what you're drinking. ये नहीं है कि आप जो पी रहे हैं. It's not what you have got in your life. और ये नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है. It's not your job. और आपका जो कार्य वो It नहीं is not है. your family. आपका परिवार नहीं है. Everything is fine. सब कुछ सामान्य अच्छा है. But the Lord is saying like this. लेकिन परमेश्वर हमें इस प्रकार कह रहा है. They were continuing on with their life. और जैसे वो अपने दिनों में करते आ रहे And थे. suddenly the day that Noah entered the ark. और अचानक से जो परमेश्वर उस नोआ के दिन में ऐसा हुआ. Jesus says in verse 24. और प्रभु यीशु मसीह 24वीं आयत में कहता है. As the lightning comes from one side and goes to the other side. क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है. And that's the way the coming of the Son of Man will be. और ऐसा ही परमेश्वर के पुत्र का आना होगा. It will be so sudden. The Son of Man will come so suddenly. और जो परमेश्वर का पुत्र बहुत अचानक से आएगा, पता भी नहीं चलेगा. So just like the lightning happened so suddenly, Jesus is coming back. और जैसे बिजली अचानक से चमकती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा. So what is the problem of a normal life which Jesus is comparing to his coming? और वो क्या समस्या है जो प्रभु यीशु मसीह अपने आने वाले दिन में होने वाली है उसके बारे में चर्चा कर रहा है. You and I live a normal life. आप और मैं एक सामान्य जीवन जी रहे हैं. But Jesus says. लेकिन यीशु मसीह कहता है. But the problem is. लेकिन समस्या जो है. That Noah is about to enter into his ark. और जो नोआ है अब अपने जो आर्क है या अपनी नाव है बड़ी सी जो उसने बनाई उसमें घुसने वाला है. Amen. वो आमीन. What was happening in the days of Noah? और नोआ के दिनों में क्या हो रहा था? He was going around the world at that time
and he was preaching to everyone, God's punishment is coming. और वो अपने दिनों में हर लोगों के पास जाया करता था और कहता था उनको परमेश्वर की जो मार है या ताड़ना है वो आने वाली है. A big flood is coming. और एक बहुत बड़ा जो भूचाल है वो आने वाला है. And the flood will kill everybody. और ये जो फ्लड है या भूचाल है जब ये आएगा वो सबको मार गिराएगा. Repent of your sins. अपने पाप से मन फिराओ. Turn away from your wickedness. और अपने गलत रस्तों से मन फिरा करके हट जाओ. Noah was not saying stop eating. और नोआ ये नहीं कह रहा था कि तुम अपने खाने को बंद कर दो. He did not say stop drinking. और वो ये नहीं कह रहा था कि अपना पीने का ढंग बदल दो. Stop getting married. कि शादियां मत करो. Don't go to work. और काम पे मत जाओ. No. नहीं. He was saying in the middle of your normal life. और वो कह रहा है कि आपके एक सामान्य जीवन के बीच में You should have a repentance towards God. आपको अपने दिल में ये अंगीकार करने की जरूरत है. And you should be prepared to enter into the ark with Noah. और वो कह रहा था कि आपको उस नोआ की जो बड़ी सी नाव है उसमें प्रवेश करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना है. What was the problem with the people of Noah's days? और नोआ के दिनों में जो लोगों की परेशानी क्या थी? They did not care for the ark that he was making. और वो जो लोग हैं उस नाव के बारे में चिंता नहीं कर रहे थे जो नोआ बना रहा था. They did not care about the message of salvation. और वो उस उद्धार के प्रचार का सही तरीके से जो प्रति उत्तर है वो नहीं दे रहे थे. Amen. आमीन. I want to say this to everyone who is a believer today. और मैं आप उन सभी लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो एक विश्वासी है आज. God has been good to every one of us. परमेश्वर हम सब के लिए भला रहा है. God has given us the blessings in our lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत आयत से आशीष दी है हमें. Not only spiritual blessings. और जो हमारी जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है उतनी ही नहीं. But God has given us material blessings. लेकिन परमेश्वर ने हमें ये जो दुनियादारी की बातें हैं उससे भी आशीषित किया है. I watch every one of you. मैं आप सबको जब देखता हूँ how God has given you a better job. परमेश्वर ने कैसे आपको एक बहुत ही अच्छा जॉब दिया है. how God has set you up in a better place. कैसे परमेश्वर ने आपको एक ऊंचे स्थान में उठाया है. after coming to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद what happened to you? क्या हुआ आपके जीवन में? your life was changed. आपका जीवन बदल चुका था. your house is built. और आपके घर बनने लग गए थे. oh, you dress up so nicely. आप बहुत अच्छे से कपड़े पहनने लग गए थे. there's more money in your hand. अब आपके हाथ में बहुत पैसे रहते हैं. how did this happen? कैसे हुआ ये सब? it all happened because of Jesus ये Christ. सब इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है. but the warning is coming to us. लेकिन अब चेतावनी हम सब के लिए आ रही है. you and I must remember the days of Noah. आपको और मुझको उन नोआ के दिन के बारे में सोचने की जरूरत है. Hallelujah. 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 we cannot run away with our life. हम अपने जीवन में इस तरह से भाग नहीं सकते हैं. we cannot just enjoy our life. हम अपने जीवन को ऐसे ही नहीं ले सकते हैं. and forgetting that Noah is making an ark. और उस नूह ने जो अपनी जो बड़ी सी नाव को बना रहा है उसको हम नहीं भूल सकते हैं. forgetting the judgment of God is on its way. और उन बातों को हम नहीं भूल सकते हैं जो कि परमेश्वर का जो ताड़ना है या उसका जो जजमेंट है हमारे ऊपर आने वाला we है. cannot live a life saying eat and drink and tomorrow we make merry and die. हम ऐसा नहीं कह सकते कि खाओ पियो और ऐश करो और मर जाओ. no. नहीं. this life is so temporary. और ये जो जीवन है बहुत एक मामूली सा या बहुत ही थोड़े समय के लिए है. that is the message the virus is giving all of us. और यही जो समाचार है ये वायरस के रूप में या उसके द्वारा हमें मिल रहा है. you're healthy today. और आप स्वस्थ हैं आज. there's nothing wrong with you. और उसमें आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. tomorrow you are dead. और कल आप मर जाओगे. that is how temporary this life is. और ये जो सामान्य जीवन ऐसा दिखाई पड़ता है. and Jesus is saying और यीशु मसीह कहता है the days of Noah. और नोआ के दिनों के बारे में. the days of Noah. नोह के दिन में. and the days of the coming of the Son of Man. और परमेश्वर के पुत्र के आने का दिन. it'll be the same. वो दोनों दिन वो ऐसा ही होगा. those people neglected the message of Noah. और वो जो नूह के दिन थे, नूह के समय में नूह के लोगों ने उसके जो समाचार को
इनकार कर दिया था। And these days that the people are neglecting the message of the Lord Jesus और Christ. आज के समय में लोग जो हैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम और उसके सुसमाचार को वो अपना नहीं रहे हैं। You're preaching the word and people don't want to receive you. और आप प्रचार करते हैं लेकिन लोग उसको सुनना नहीं चाहते We're हैं। asking the people to repent and they laugh at you. और जब आप कहोगे कि क्या आपने आपका उद्धार हुआ है, और लोग आप पे हंसेंगे। And I want to call upon everyone who is listening to my message. और आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज जो मुझको सुन रहे हैं, मेरे प्रचार को सुन रहे हैं, What condition that you're living today? और एक जो बात है जिसके साथ आप जी रहे हैं आज, Do you realize that you are like in the days of Noah? क्या आपको ये समझ में आ रहा है या सोच रहे हैं कि आप नूह की तरह नूह के दिनों के जीवन में जी रहे हैं? Do you understand that we cannot live a life forgetting Jesus? हमको ये याद रखना है कि हम यीशु मसीह को भुला करके अपनी जिंदगी नहीं जी सकते We हैं। cannot live in sin and go on our own way. हम ऐसा नहीं जी सकते हैं कि बस पाप करते रहें और आगे बढ़ते रहें। Jesus says Noah was building the ark. और यीशु मसीह कहता है कि नूह उस नाव को बना रहा था, But people did not care. लेकिन लोगों ने उसके बारे में चिंता नहीं And की। what about today? लेकिन आज क्या है? What do you think about yourself? और आप अपने जीवन में क्या अपने बारे में क्या सोचते Oh, हैं? very good job. और बहुत अच्छा जॉब है मेरे Oh, पास, nice family. और बहुत अच्छा परिवार है, Plenty of money. और बहुत से पैसे हैं, And I'm young. और मैं बहुत जवान हूँ, And I'm so और strong. मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। What can touch me? मुझे क्या हो सकता है? No, my dear friend. नहीं मेरे मित्र, गलत है। The days where we are living is a message that comes from God. और जिन दिनों में हम जी रहे हैं उसके प्रति परमेश्वर का समाचार हमारे लिए आ रहा है। A little virus can destroy your life, my life. और ये जो छोटा सा जो वायरस है वो हमारे जीवन को खत्म कर सकता है। Amen. आमीन। And the time has come that for you to turn towards God. और समय आ चुका है कि अब आपको परमेश्वर की तरफ घूमने की जरूरत है या उसको अपने दिल में बुलाने की जरूरत है। This is the message I give every one of you. और ये समाचार है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। Repent. और अपने पापों से मन फिराइए। Because the kingdom of God is near. और मन फिराइए क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो करीब है। The kingdom of God is coming so close to you and me. और परमेश्वर का जो राज्य है वो हमारे बहुत करीब आ चुका है। Repent of your sins. अपने पापों से मन फिराइए। Jesus came just for you. और यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए आया है। 2000 years ago. और 2000 साल पहले Jesus came and died for you and me. वो आपके लिए और मेरे लिए आया और वो मर गया क्रूस पर। Why? क्यों? If you will repent of your sins. जब आप अपने पापों से अंगीकार करेंगे, If you will believe on the Lord Jesus जब आप प्रभु Christ. यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, Your life will be changed. आपका जीवन बदल जाएगा। God will make you a child of God. परमेश्वर आपको अपना पुत्र बना लेगा। Just like the days of Noah. जैसे नूह के दिन में हुआ था। That a big ark was made. और बहुत बड़ी एक ये जो नाव है वो बनाई गई थी। But only Noah and his family got inside. लेकिन सिर्फ उस नाव में नूह और नूह के परिवार प्रवेश कर पाए। But there's an ark waiting for us now. और हमारे लिए भी एक नाव अब बिल्कुल इंतजार कर रही है। And the name of that ark is Jesus Christ. और उस जो नाव है उसका नाम है यीशु मसीह। And he is telling you and me, the big destruction is coming. और वो हम सब से कह रहा है कि एक बहुत बड़ी जो बात है वो आने वाली है या हमारी प्रतीक्षा कर रही है। This world will be destroyed. और ये जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी। Nobody can save this world. कोई भी इस दुनिया को नहीं बचा पाएगा। Repent. और मन फिराएं। Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आ जाएं। Only Jesus can save सिर्फ you. यीशु मसीह आपको बचा सकता Only है। Jesus can forgive your sins. सिर्फ यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा दे सकता है। I'm calling to every one of you. मैं आप सबको बुला रहा हूँ। When you get this message, जब आपको ये सुसमाचार सुनने में when आएगा, Jesus is speaking in your heart, जब यीशु मसीह आपके दिल से बातचीत करेगा, repent of your sins. और अपने पापों से मन फिराइए, Pick up your phone and call us. और अपने फोन को उठाइए और हमको बुलाइए। Sit wherever you are. और जहाँ कहीं पे भी है बैठ जाइए। Open your heart to अपने Jesus. हृदय को खोल लीजिए यीशु मसीह के लिए। Confess that you are a sinner. और अब ये अंगीकार कीजिए कि आप एक पापी हैं। You say, Lord Jesus, come into my और life. आप इस प्रकार कहिए, यीशु मसीह आप मेरे हृदय में आ जाइए। Change my life,
life, Lord. मेरे जीवन को बदल दीजिए Make me a child of God. और मुझे अपना पुत्र होने के लिए ले लीजिए। This is your time. और ये आपका समय है This is your message. और ये आपके लिए समाचार है। Because I love you, I'm sharing this message to क्योंकि you. मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए मैं आपको ये समाचार दे रहा हूँ। Hallelujah. Hallelujah. And even for the believers. और यहाँ तक कि उन विश्वासियों के लिए भी। It's time for us to draw closer to और Him. अब ये समय है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाएं। Keep our eyes on the ark. हमारी आंखों को उस नाव के ऊपर लगा लें Keep our eyes upon Jesus. और हमारी आंखों को यीशु मसीह के ऊपर लगा दें। Paul says like this. और पौलुस इस प्रकार कहता है Looking unto Jesus. और यीशु मसीह को ताकते The रहिए author and the finisher of our faith. और हमारे विश्वास का जो शुरुआत है और जो आखिरी है। Amen. आमीन। The only hope is Jesus Christ of और Nazareth. सिर्फ यीशु मसीह जो नासरी है वही हमारी एकमात्र आशा है। And Jesus says, likewise the day of Lot. और वो यीशु मसीह कहता है कि उस लूत के दिन में भी It was the same problem. और वहाँ पे भी वही समस्या थी। People were eating and drinking. वहाँ पे भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे। And it says here more, they ate, they drank, they bought, they sold, they planted and they built. Verse और 28. इधर लिखा है 27वीं आयत में 28वीं आयत में और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। So he's saying a little bit more for the days of Lot. और लूत के दिन के बारे में और थोड़े लंबे में और स्पष्ट रूप से बताया गया It's the है। same thing, my dear friends. और ये बिल्कुल एक जैसी बात है। Living a normal life. और एक सामान्य जीवन जीना। But the only problem is, लेकिन एक समस्या है। you can live your life. आप अपने जीवन को जी सकते हैं। Enjoy your life. अपने जीवन का लुत्फ उठा सकते Nothing हैं। wrong in having a nice car. और अपने जीवन का लुत्फ उठाना कोई बुरी बात नहीं है। Nothing wrong in building a nice house. और अपने लिए एक अच्छा घर बनाना कोई बुरी बात नहीं Nothing है। wrong in having good money in your bank. और आपके पास एक अच्छा पैसा होना बैंक में वो भी कोई बुरी But बात नहीं है। everything is wrong if you take your eyes away from Jesus. लेकिन ये सब बुरा बन जाएगा अगर आप अपनी आंखों को यीशु मसीह से फेर लोगे। God sent His angels to Sodom and Gomorrah. और सोदोम और गमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है। And He told Lord, get out of this place. और वो लूत से कहता है कि इस जगह से निकल जाओ। Because we are going to destroy this place. क्योंकि हम जल्द से जल्द ये जो जगह का नाश करने वाले हैं। Fire and brimstone is going to fall and they're going to burn down the cities. और ये जो आग के गोले आएंगे नीचे धरती पर और इस जगह का तहस नहस कर देंगे। What we read? और हम क्या पढ़ते हैं? One angel took hold of Lot and his wife. और एक जो स्वर्गदूत है वो लूत और उसकी पत्नी को पकड़ता है। The other angel took hold of both of his daughters. और जो दूसरा स्वर्गदूत है वो उनकी अपनी बहुओं को पकड़ता है। दो लड़कियां। और जो लूत की जो बेटियां हैं उनको पकड़ता है। And he brought them out. और वो उस जगह से उनको बाहर लेकर And the के angel आता said, है। run to the mountains. और वो जो स्वर्गदूत कहता है कि उस पहाड़ की तरफ भागते रहो। You don't need to look at and see what's happening to the city. आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि उस शहर में क्या घट रहा है। Don't turn back. पीछे मत मुड़ना। Run for your life. बस अपने जीवन को बचाने के लिए आगे भागते रहिए। And what happens? तब क्या होता है? The wife of Lot turned and looked at the city. और जो लूत की जो औरत है वो पीछे मुड़ के देखती है। The righteous man's wife. और जो एक धर्मी जन का जीवन wife. और जो लूत की जो पत्नी है। And she was brought out by the angel. और वो स्वर्गदूत के द्वारा बाहर निकाली आई है। Message has been given to her. और उसको भी सुसमाचार मिल चुका था। She should not look back. उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। Then, but what did she do? लेकिन उसने क्या किया? She looked back. उसने पीछे देख लिया। Why? क्यों? Her heart was still in Sodom and Gomorrah. और उसका जो दिल था वो अभी भी सोदोम और गमोरा में छोड़ करके आई थी। She was looking back because she could not leave Sodom and Gomorrah in her heart. वो सोदोम और गमोरा को अभी तक देख रही थी क्योंकि वो अपने दिल में सोदोम और गमोरा को बसा के बैठी थी। She became a pillar of salt. और वहाँ पे वो एक नमक का खंबा बन गई। Many of us are like the wife of Lot. और हम में से कई लोग हैं हम जैसे लूत की पत्नी के बराबर हैं। Some people don't even think that Jesus is coming back. और बहुत से लोग तो ये भी नहीं सोचते कि यीशु मसीह आने वाला है। Churches don't preach about the coming of Jesus Christ. और बहुत से लोग
यीशु मसीह के वापस आने की बातचीत कर रहे हैं। What we preach in the churches today. और आज हम अपनी कलीसिया में किस प्रकार का प्रचार करते हैं? Oh, put your money in the offering. वो कहते हैं कि अपने जो पैसे हैं उसको भेंटों में चढ़ाओ, Oh, it is going to multiply. और ये बहुत बढ़ चढ़ के आपको आशीष देगा, You're going to be prosperous. और आप बहुत ही अमीर हो जाओगे, You're going to be so rich. और आप बहुत अमीर हो जाओगे, Your life is going to be और amazing. आपका जो जीवन है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। Remember the days of Noah. लेकिन उस नूह के दिन को याद कीजिए, Remember the days of Lot. और लूत के दिनों को याद कीजिए। And verse 32 says like this. और जो 30 और 32वीं आयत इस प्रकार कहती है, Remember the wife of Lot. लूत की पत्नी को स्मरण रखो। What do we need to remember about her? हमें उसके बारे में क्या याद करने की Is जरूरत it है? something good to remember? क्या उसको याद करने की अच्छी बात है? No. नहीं। A big warning for you and me. आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। When you leave Sodom and Gomorrah, और जब आप सोदोम और गमोरा को पीछे छोड़ दोगे, when the hand of God comes upon us, जब प्रभु यीशु मसीह का हाथ या परमेश्वर का हाथ हम पे आएगा, we will go with our heart away from this world. और तब हम अपने दिल में ये सारी दुनियादारी की बातें छोड़ करके आगे जाएंगे। That is what we need today. और वो है आज हमें करने की जरूरत है। Run for your life. सिर्फ अपने जीवन को बचाने के लिए This भागिए, world will perish. और ये जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी। Whatever you and I have saved up in our life will be lost. जो भी हमने अपने जीवन में बचाया है वो सब नाश हो जाएगा, Because Jesus Christ is coming. क्योंकि यीशु मसीह वापस आने वाला The है। hand of God is coming upon everyone. परमेश्वर का हाथ हम सब पे है। Which side you are going to be? आप किस साइड में खड़े होने Are वाले you हैं? going to be inside the ark of Lot, ark of Noah? क्या आप नूह के उस नाव के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, Or are you going to be holding on to the hands of the angels and run from away from the city of Sodom and Gomorrah? या आप उन लोगों की तरह होंगे जिनको स्वर्गदूत हाथ पकड़ के उस सोदोम और गमोरा के शहर से बाहर लेके आता है? Then we are safe. और हम बिल्कुल बचे जा चुके हैं। That means we have listened to the words of Jesus. इसका मतलब है कि हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पे विश्वास किया है। Friends, we live in this world, दोस्तों, हम इस दुनिया में जीते हैं, but we don't belong to this world. लेकिन हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं। Remember that all the time. हमेशा इस बात को याद रखिए। You and I cannot live like an worldly person. और हम इस दुनियादारी की बातों में और दुनिया के लोगों की तरह नहीं जी सकते हैं। Our life is like a boat. हमारा जो जीवन है वो एक नाव के बराबर है, And you and I are like a boat traveling in the ocean. और हमारा जो जीवन ऐसा है कि एक नाव एक बहुत बड़े समुद्र में जो चल रही है। Remember this. और इसको याद रखिए, We need the water to travel, but the water should be under the boat. हमें पानी की तो जरूरत है ताकि हम उस नाव में जाकर के उस पार निकल जाएं, लेकिन पानी को अंदर आने की जरूरत नहीं है, The water cannot come inside. क्योंकि जो पानी है वो अंदर नहीं आ सकता है। That is a warning that Jesus is giving to every one of us. और ये जो चेतावनी है प्रभु यीशु मसीह हम सबको दे रहा Let है। us love the Lord with all our heart. आइए हम सब लोग अपने दिल से यीशु मसीह को प्रेम करें, Keep looking for the ark. सिर्फ हमेशा उस नाव की तरफ ताकते रहें, Keep your ears open for the sounding of the trumpet. और वो जो ट्रम्पेट की जो आवाज है, तुरई की जो आवाज है बजने वाली है, उसके लिए अपने कान को खोल के रखिए, Hear the noise of the archangel, और उस आर्कएंजल की आवाज के लिए आप तत्पर रहिए, because he will appear on the clouds. क्योंकि वो जल्दी से बादलों में आने वाला And है। all these signs are telling us he's at the door. और ये जो चिन्ह सारे हो रहे हैं ये हमें बता रहा है कि वो सिर्फ हमारे दरवाजे पे ही खड़ा है। Amen. Let us prepare ourselves to meet our God. आइए हम अपने आप को तैयार करें कि हम अपने परमेश्वर से मिल सकें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, Lord, what an amazing message, Lord. और कितना बेहतरीन संदेश है परमेश्वर। Lord, help us to repent. और परमेश्वर होने दीजिए कि हम अपने दिलों में अंगीकार Help लेके us to आए, open our hearts. होने दीजिए हम अपने हृदय को खोल लें, Lord, be prepared for the coming of the और Lord. परमेश्वर होने दीजिए कि हम अपने आप को तैयार करें आपके लिए, Let not the world take a hold of us, और Lord. होने दीजिए कि हम दुनियादारी की बातों में ना फंस जाएं, But we want to take a hold of Jesus Christ लेकिन हम यीशु मसीह को पकड़े रहना and चाहते हैं। prepare us for that wonderful day. लेकिन हम अपने उस बहुत ही बेहतरीन दिन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। Lord, bless the people, Lord. परमेश्वर होने दीजिए कि आप इन लोगों को Bless the आशीषित Capital कीजिए। Christian Center people, Lord. परमेश्वर कैपिटल क्रिश्चियन सेंटर के तमाम लोगों को आशीषित कीजिए, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father God, and the fellowship of the Holy Spirit be with all of us from this time forevermore. आमीन। Amen. My dear friends, what a joy and a privilege
to worship the Lord together with you today. और मेरे प्रिय मित्रों, कितनी सुहावनी बात है कि हम सब एक साथ आराधना कर सकते हैं आज के दिन। Wherever you are, take care of yourself. और जहाँ कहीं पे भी है आप अपना ख्याल रखिए Love Jesus with all your heart. और यीशु मसीह को दिल से प्यार करिए Prepare yourself for the coming of the Lord Jesus. और यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को आप जल्दी से तैयार Pray कीजिए for the nation of India. और भारत देश के लिए प्रार्थना कीजिए Pray against the coronavirus. और ये जो कोरोना वायरस है इसके विरुद्ध में प्रार्थना Pray for कीजिए। God's protection upon every one of us. परमेश्वर की सुरक्षा हम सब पर बनी रहे उसके लिए दुआ कीजिए। And I continue to pray that God will take care of you. और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। I love you very much. मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, And I miss you so much. मैं आपको बहुत याद करता हूँ। I'm waiting to look at your face and talk to you and give you a hug and say how wonderful it is to see you again. मैं बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मैं आपसे मिलूं, आपसे गले मिलूं, आपसे हंस के कहूं और ये कह सकूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। God love you very much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता And है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।